کہ میرے پاس 10 دلیلیں ہیں، 10 اور ہیں، 10 دلیلیں ہیں، میں ان دلیلوں کو پھر دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے پردیسیوں کا مجمع، 40 پردیسی جمع ہو جائیں جہاں دعائیں مانگیں قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا رجال الغیب، تیسرا بچوں کی دعائوں کی آمین، چوتھا ختم قرآن کی قبولیت، پانچواں رونے والے کم بنوا دیتے ہیں، سسکنے والے، اور چھٹا طاعت رات، اور ساتواں سفید بال، اور آٹھواں توبہ کرنے والے، اور نواں وسیلے کے واقعات میں نے بیان کیے ہیں، اور 10واں ذکر تسبیح اور درود پڑھنے والے۔ اس لیے فرمایا جہاں قبولیت کا مجمع ہو، پھر وہاں قبولیت پہ جو شک کرے رب اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے حاجی کے بارے میں فرمایا اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پردیسیوں کا مجمع، صرف پردیسیوں کو دیکھنے سے، صرف دیکھنے سے، میرے پاس اس کے ثبوت ہیں، صرف پردیسیوں کو دیکھنے سے، لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن۔ عربی میں پردیسی غریب کہتے ہیں اس کو، ہم پردیسی مسافر کہتے ہیں، عربی میں اس کو غریب کہتے ہیں، غریب۔ گھر سے بچھڑا ہوا، اور پردیسی بھی وہ جو درہم اور دینار کے لیے چل رہا ہے، مال کے لیے، دنیا کے لیے، چیزوں کے لیے سفر کر رہا ہے، دوسرے لمحوں میں تجارت کے لیے، جو پردیسی تجارت کے لیے سفر کر رہے ہیں، اس کے دیکھنے میں بھی فضیلت ہے۔ اتنی فضیلت تو ہے، اتنی رعایت تو ہے کہ رب نے اس کی فرض نمازیں بھی آتی کر گئی ہیں، اس کے ساتھ روزوں کی رعایت رکھتی ہے، اس کے ساتھ نوافل کی رعایت ہے، اس کے ساتھ سنتوں کی رعایت ہے، حتیٰ کہ بعض احکامات میں اس کو رعایت ہے پردیسی کے لیے۔ کئی بار میں نے واقعات بیان کی ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک دکھیارا غم کا مارا آیا کہ حضرت گھر میں فقر، فاقہ اور غربت اور تنگ دستی ہے، اور فاقوں اور غربت اور تنگ دستیوں نے زندگی کو اجیرن کر دیا، بے چین زندگی ہے، بے قرار زندگی ہے۔ سب کچھ لٹ چکا، کچھ باقی نہ بچا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ حاصل نہیں۔ اس نے دکھوں کی اور غموں کی کہانی ایسے بیان کی کہ سننے والے بھی غم زدہ ہو اور رو پڑے۔ حضرت نے جو چیز بتائی، فرمایا کہ 40 پردیسیوں کو جمع کر، اور 40 پردیسیوں کو جمع کر کے ان سے دعا کرا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تیری مشکل دور ہو جائے گی، تیری ناکامی ختم ہو جائے۔ 40 پردیسی، ان سے دعا کرا، اور 40 پردیسی مسافر وہ ہوں جو مخلص ہوں، اخلاص والے۔ مجھے نا کچھ زندگی کے ایک لمحات پہ، ساری زندگی پہ ندامت ہے، ایک ندامت کا لمحہ ہے میرے سامنے، ندامت کا لمحہ۔ ایگزاسٹ کی ضرورت ہے، حبس تو نہیں ہے گرمی، بھئی یہ کھڑکیاں پوری کھولیں، ایگزاسٹ نہ چلائیں، لیکن کھڑکیاں پوری کھولیں، اور ایک بندہ ذمہ دار ہو، پوری کھڑکیاں دیکھے کھلی ہیں یا نہیں کھلی، ایگزاسٹ بند کریں بڑے۔
मैं हाफिज आलिम कारी नहीं हूं, इसलिए मेरी उर्दू भी की जेर जबर कमजोर होती है, अरबी के तो वैसे ही कमजोर है, कुरान की जेर जबर बहुत कमजोर है मेरी। मैं कुरान पाक पढ़ने जाता था, कुरान पाक, तो फिर हमारे उस्ताद मोहतरम जो हैं हमें घरों में भेजते थे पढ़ने के लिए, सिपारे लिए हम जाते थे और सिपारे के वर्के पलटते थे कि मैं कोई उम्र होगी मेरी 12-13 साल की, इससे भी कम, इससे मना इतनी उम्र होगी, वर्के पलटते थे, हिलते थे, वर्के पलटते थे, और उसके बाद सिपारा खत्म हो जाता था, उसको चूम के रख देते थे। 30 पारे ऐसे लम्हों में खत्म हो जाते थे, अल्लाह जाने जिन्नत पढ़ते थे या हम पढ़ते थे। और उसके बाद खाना मिलता था, उस्ताद के लिए खाना भी होता था, कुछ रुपए भी होते थे, 100 रुपए होते थे, 200 रुपए, 100 रुपए। नदामत, शर्मिंदगी होती है। वो क्या लम्हा था। इसलिए हुक्म है, अगर तेरा वालिद फौत हो गया तो अहले तो अपने वालिद का जनाजा तो खुद पढ़ा। जो दर्द तेरे अंदर है वो किसी और में नहीं आ सकता, जो सोच तेरे अंदर है वो किसी और में नहीं आ सकता, वो किसी और में नहीं आ सकता। खुद जनाजा पढ़ा, जिक्र कर, खुद कर। जो तेरे अंदर एहसास है वो नहीं है हो सकता किसी में, वो नहीं हो सकता। तो सरकार ने फरमाया बाबा जी ने कि 40 परदेसी जमा कर। कितने? पर हो बड़े मुखलिस। ये शर्त ऐसी सख्त शर्त है, ये शर्त ऐसी सख्त शर्त है जो बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। और ये पहले दिन से लेकर सहाबा के बाद, अहलुल बैत के बाद, तबा ताबीन औलिया के बाद ये शर्त बड़ी मुश्किल से पूरी होती है कि 40 बंदे ले आ, उनको रोटी भी खिला, उनको खिला पिला भी सही, पर मुखलिस होना शर्त है। लिल्लाहियत, लिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए मुखलिस होना शर्त है। इखलास वाले हिदायत के चराग होते हैं। सरकार का फरमान है, सरकार मदीना का, और अल्लाह उनके जरिए से बड़े फितने दूर कर देते। मुखलिस होना जरूरी है। और फरमाया उनसे दुआ करा, तो दुआ कर वो आमीन कहें, तो दुआ कर वो आमीन कहें, तो दुआ कर वो आमीन कहें। उनसे दुआ करा। अल्लाह, उसने ये अमल किया। अब मैं सोचता हूं कहां से मुखलिस लाया हो। सारे दिल ही दिल में ये 11 दफा पढ़े, या हफीज या सलाम। कहां से लाया, दुआ कराई, और उसकी मुश्किल टल गई और उसकी परेशानी दूर हो गई। आज इस मजमे में मर्द और खवातीन का परदेसी मजमा है, अक्सरियत का, और पूरी दुनिया में परदेसी मजमा बैठा है हमारे साथ बरह रास्त, पूरी दुनिया में। आज ये दुआ करेंगे, आज ये बैठ के जिक्र करेंगे, आज ये परदेसी बैठ के अल्लाह के सामने फरियादें करेंगे और अल्लाह के सामने इल्तिजा करेंगे। ये परदेसी मजमा आज बैठ के, जिनका मतलूब अल्लाह हो, जिनका मकसूद अल्लाह हो, जिनका महबूब अल्लाह हो, जिनको मरगूब अल्लाह हो, उनके खुलूस में कोई शक हो सकता है? परदेसी हाथ खड़ा करें। वाह मौला, तो कई 40 है, तो कई 40। मैं लाहौर वालों को, करीब वालों को मुबारक देता हूं कि इन परदेशियों की बरकत से तस्बीह खाना आबाद है। उठ यार फरीद थी शादवल, मुझा को ना कर याद वल, ये झोंका थिसन आबाद वल, इनकी वजह से आबाद है। और इन परदेशियों ने पूरा महीना तस्बीह खाने को आबाद रखा, चांद रात के इंतजार में कि चांद रात होगा, ईद पढ़ेंगे, फिर घरों में जाएंगे। किसी को छत पे जगह मिलेगी, कोई लटक के जाएगा, कोई घिसटता जाएगा, पर उनका कोई हर्ज नहीं।
पर जो बरकतें मेरी नस्लों में जाएंगी वो फिर कभी नहीं मिलेंगी। बस भी मिल जाएगी, ट्रेन भी मिल जाएगी, गाड़ी भी मिल जाएगी, पर बरकतें फिर कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। ये परदेशियों का मजमा आज मेरे सामने बैठा है और फरमाया 40 परदेशी जमा कर और उनसे दुआ करा और वह तेरे हक में दुआ करें और तेरी मुरादें पूरी हो जाएं और तेरी मुश्किलें हल हो जाएं और तेरी नाकामियां दूर हो जाएं और तुझे इज्जत वक़्त, तुझे बरकत राहत, तुझे राहत रहमत मिले 40 परदेशियों की वजह से। आने वाले परदेशियों को भी मुबारक देता हूं और जो परदेशी नहीं है उनको भी मुबारक देता हूं। इनकी दुआओं से जादू टूट जाते हैं, बंदिशें खत्म हो जाती हैं। कहते हैं मुझे कोई जादू का इलाज बताएं, मेरे दुश्मन हैं, मेरे करीबी दुश्मन है, किसी और मजहब के हैं। अरे इन्हीं मजमों से जादू टूटते हैं, इन्हीं महफिलों से जादू टूटते हैं, इन्हीं जगहों से जादू टूटते हैं। और एक बात याद रखिएगा, मुखलिसीन का जहां मजमा होता है अल्लाह उसमें एक रिजालुल गैब जरूर भेजते हैं। मैंने यह बात आज सुबह कही थी। जहां मुखलिसीन का मजमा रब की तलाश में, उसके हबीब के इश्क में चलता है, अल्लाह एक रिजालुल गैब ऐसा भेज देता है जिसकी बरकत सबको मिलती हैं, जिसके अनवारात सबको मिलते हैं और जिसकी कैफियत सब उससे रंगारंग होते हैं। अल्लाह पाक सब उसकी वजह से सबको माला माल कर देते हैं। एक ऐसा रिजालुल गैब है, मैं आपकी शक्ल में, मेरे आपके चेहरे में, मेरे आपके नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं बज़ाहिर होती, पर वो रिजालुल गैब सारे मजमे की निजात का जरिया बन जाता है। फरमाया हज पे 2 फरिश्ते खड़े थे, पूछा, 2 फरिश्ते खड़े थे, पूछा क्या बना हज का? कहा किसी का हज कबूल नहीं हुआ। 7 लाख आदमी थे इस दफा हज में, पुरानी बात है। तो कहा फिर, कहा कि अल्लाह का एक बंदा ऐसा था उसकी वजह से सबका हज कबूल हो गया। अल्लाह कोई रिजालुल गैब भेजता है और कोई आंखें हैं सिर्फ उसको देख सकती हैं, मुआशरे और दुनिया के एतबार से उसकी कोई हैसियत बज़ाहिर नहीं होती। इसलिए कहता हूं इन आने वाले मजमों की कदरदानी हमारे दिल में हो, इस आने वाले मजमे की कदरदानी हमारी तबीयत में हो, इस आने वाले मजमे की कोई ठोकर लग जाए, कोई कोहनी लग जाए, कोई कंधा लग जाए, इसकी कदरदानी हमारे जीवों में हो, हमारे मन में हो। कुछ हो आने वाले मजमे की। अल्लाह पाक एक अपने रिजालुल गैब में से एक ऐसा बंदा भेज देता है जो साहिब डिफ्टी होता है, जो साहिब मनसब होता है, हाँ, जो साहिब मकाम होता है। अल्लाह कहता है जाके इस मजमे में बैठ जा और इस मजमे को बस जो मैंने तुम्हें अता किया तो अता किए जा। और दूसरा 40 दुखियारे गम के मारे जिनके अल्लाह के यहां फरियादें हैं, और यहां तो कई 40 बैठे हैं, यहां तो गम के मारे कई बैठे हैं, यहां दुखों के हारे कई बैठे हैं। इतने 40 बैठे हैं आप सोच नहीं सकते, 40 बैठे। मैंने 2 कबूलियत के पैकेज बयान किए हैं, पहला 40, दूसरा रिजालुल गैब। अल्लाह कोई ऐसा बंदा भेज देता है रिजालुल गैब, दूसरा रिजालुल गैब। इस मजमे में जितने बच्चे हैं खड़े हो जाएं, वहीं अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, खड़े हो, जल्दी करो, खड़े हो जाएं, वाह, बैठ जाएं। बच्चों का पैकेज छोटा है। हवेली के सामने ना एक सड़क जा रही है, हवेली के दरवाजे के सामने गेट से इधर एक गांव की तरफ सड़क जा रही है। एक गधा रेडी वाला, मरे एक शाह साहब थे, एक हादसे में फौत हो गए। उसने 100 रुपए निकाले, मुझे याद है, और कुरान उठा के खड़ा हो गया, कहने लगा सैयद दुआ कर, गरीब हूं, दुखियारा हूं। शाह साहब ने दुआ की। एकदम मुझे मिला, मैंने कहा इधर आ, तुझे अमल बताता हूं। मैंने कहा अपने और मोहल्ले के बच्चे जमे कर, उन्हें गरीब के बाल में बहुत सारे होने, गरीब के बच्चे वैसे ज्यादा होते हैं। मैंने कहा अपने और छोटे छोटे टायर होते हैं, तो मैंने कहा अपने बच्चे जमा कर, 2 रुपए की टाफियां ले, दुआ कर। फिर मैं दुआ कैसे करूं? मैं कहा जिस जुबान में आता है अल्लाह से फरियाद कर,
اللہ رزق دے دے، اللہ روٹی دے دے، اللہ برکت دے دے، اللہ مجھے گدھا بڑا کہہ رہے بڑا گدھا چاہیے، میں کہ اللہ سے بڑا گدھا مانگ. اس کا گدھا چھوٹا تھا، وزن نہیں اٹھا سکتا تھا. اللہ سے بڑا کہ میں بڑا کھوتا چاہیے مانگ، اللہ ہی دے گا نا. ہمارے لیے تو گدھا مانگنا ہنسی ہے، اس کے لیے تو نعمت ہے. بڑا گدھا چاہیے، بڑا ریڑا چاہیے، بڑی چیزیں چاہیے اللہ سے. میں نے کہا بچوں کو آمین کہا، ٹافیاں سامنے رکھ دے. میں کہ غلطی نہ کرنا، پہلے نہ دینا، بھاگ جائیں گے. سامنے رکھ. ان کی غفلت کی آمین بھی قبولیت کی آمین ہے. پھر سنو، ان کی غفلت کی آمین بھی قبولیت کی آمین ہے. میں اس کی دلیل دیتا ہوں، میرے پاس ثبوت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مہم پیش آتی تھی، کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، مدینہ کے بچوں کو جمع فرماتے تھے اور کہتے تھے میں دعا کہتا ہوں تم آمین کرو. عمر جیسا بندہ، امیر المومنین عمر جیسے بندے نے بچوں سے دعا کرائی ہے. آج اس محفل میں مستورات کے ہاں ہماری پوری بلڈنگ ہے بچوں والی، بچوں کی بلڈنگ ہے. بچے نہ سمجھ بچے ہیں، بے شعور بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک بچہ ماں سے پوچھ رہا ہے کہ اماں مینڈک کا روزہ رکھتا ہے؟ مینڈک ماں سے پوچھتا ہے. ہمارے گھر والے سن رہے تھے کہ اماں مینڈک کا روزہ رکھتا ہے، اس سے پوچھو. پھر اس نے موبائل میں پوچھا روزہ رکھتا ہے، کیونکہ اگر نہ پوچھیں تو پھر جھگڑا ہو جائے گا، پوچھا کیوں نہیں. یہ معصوم بچے، یہ زندگی کی بڑی مشکلوں کا حل ہوتے ہیں. اس راز کو امیر المومنین عمر جانتے تھے، ساری دنیا کے ولی جانتے تھے، غوث جانتے تھے، کتب جانتے تھے، ابدال جانتے تھے، کلندر جانتے تھے. اس محفل میں قبولیت کے لیے بچے موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، نیچے موجود ہیں، مستورات کی طرف بہت زیادہ موجود ہیں. قبولیت. اور چوتھی قبولیت کی گھڑی ختم قرآن ہے. ختم قرآن. جہاں ختم قرآن ہوتا ہے، پہلے دور میں اتنی محفلیں نہیں ہوتی تھیں، دور دور سے لوگ کسی درویشوں کے پاس سفر کر کے آتے تھے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دلی سے چلتے تھے، اپنے مرشد شاہ ابو المعالی کے ہاں آ کے روزے رکھتے تھے. اور مرشد عالم نہیں تھے، خود عالم تھے، مفتی تھے، محدث تھے اور محدث اعظم تھے. سر جھکا کے چلتے تھے، کبھی روک ٹوک نہیں کرتے تھے، روک ٹوک نہیں کرتے تھے. ختم قرآن کا انتظار ہوتا تھا. سارا مہینہ تراویاں پڑھی، ختم قرآن کا انتظار ہے کہ ختم قرآن پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں قبول ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، ناکامیاں دور ہوتی ہیں، اللہ کی ذات اور رحمت متوجہ ہوتی ہے. ختم قرآن میں، ختم قرآن، ختم قرآن. آج ختم قرآن ہے، آج ختم قرآن. قبولیت کی ایک اور دلیل سنیں. اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ رونا نصیب کرتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ رونے کا مزاج ہے اس کا، واقعی روتا ہے. آخر میں آئے گا وہاں گیلری میں کھڑا ہو جائے گا، ہاتھ ملائے گا، لیکن رونا. ایک بزرگ تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، دکھیاروں کی مدد کرتے تھے، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی، دکھیاروں کی، غم کے ماروں کی مدد کرتے تھے. اور مقروض ہو گئے بہت زیادہ، اور آخری وقت آ گیا کہ آپ حضرت کے جانے کا وقت ہے، روانگی ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، موت و حیات کی کشمکش ہے. جس کو پتا چلا کہ حضرت تو جا رہے ہیں، انہیں کہ پیسے کون دے گا، پیسے کون دے گا. وہ آیا بیٹھ گئے، حضرت پیسے کہاں بیٹھے ملتے ہیں. وہ آیا بیٹھ گئے، سارے پیسے لینے والے آپ پریشان بیٹھے ہیں. حضرت غشی میں چلے جاتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھا حضرت پیسے ملتے ہیں؟ انہوں نے کہا بابا گیا، آخری سانسوں کا تانا بانا ٹوٹ رہا، پیسے کون دے گا.
یہ حال تھا تو باہر سے آواز آئی، ایک بچہ کوئی میٹھی چیز مٹھائی بیچ رہا تھا اور آوازیں لگا رہا تھا۔ حضرت اس وقت ہوش میں تھے، فرمایا بچے کو بلاؤ۔ بلایا تو کہا یہ ساری مٹھائی سب کو بانٹ دو۔ خوش ہو گیا، میری تو 1 منٹ میں مٹھائی بک گئی۔ تو اس نے کہا پیسے؟ انہوں نے کہا ہم ہی بیٹھے ہیں پیسوں کے لیے، بابا جا رہا ہے۔ بچہ بڑے پریشان ہوگا۔ اس نے کہا وہ تو میرے سارا ختم ہو گیا، بڑے بڑے پیسوں والے بیٹھے ہیں، ان کا ملا میرا کیا ملے گا؟ پہلے تو بیٹھا رہا، پھر رونا شروع ہو گیا اور روتے روتے ہچکی بند گئے، رونا شروع ہو گیا۔ بس تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، اور بادشاہ کی طرف سے اشرفیوں کا بڑا تھال آیا کہ حضرت بادشاہ نے آپ کو اشرفیوں کے تھال کا ہدیہ بھیجا ہے۔ کہا الحمدللہ، بن مانگے کی نعمت آئی ہے جس میں غرض اور طمع اور لالچ نہیں ہے۔ اور سب سے کہا اپنا اپنا حصہ لے لیں، قرضہ۔ مٹھائی والے نے بھی لے لیا، سب خوش ہو گئے، سب جانے لگے نا۔ تو حضرت نے سب کو ٹھہرایا اور ٹھہرانے کے بعد فرمایا تم سب میں مانگنے والے سارے تھے، رونے والا کوئی نہیں تھا۔ مانگنے والے سارے تھے اور رونے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک رونے والا آیا، اس نے ساری محفل کے کام بنا دیے۔ یہاں رونے والے بہت ہیں، میں پورا رمضان دیکھتا رہا۔ تڑپنے والے بہت ہیں، میں پورا رمضان دیکھتا رہا۔ سسکنے والے بہت ہیں جو اللہ کے عرش کو ہلا دیں، آنسو بہانے والے، بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے مانگنے والے۔ میرے اللہ کو وہ چیز پسند ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، یاد رکھے جو اللہ کے پاس نہیں ہے وہ دے دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک شخص گلیوں میں آوازیں لگاتا پھر رہا تھا، لوگوں خطاب کے بیٹے عمر ابن خطاب کے بیٹے سے کہہ دو امیر المومنین سے میرے پاس وہ ہے جو عمر کے رب کے پاس نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا دعویٰ، خطرناک دعویٰ، ہم کہتے ہیں اللہ کے پاس سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس وہ ہے جو عمر کے رب کے پاس نہیں۔ لوگ پکڑ کے لے گئے، پوچھا کیا کہتا ہے؟ کہا میں صحیح کہتا ہوں، میرے پاس ساری تواضع ہے، میرے پاس سارا نیاز ہے، میرے اللہ کے پاس سارا ناز ہے۔ اللہ کے پاس تو تواضع ہے ہی نہیں، جھکنا ہے ہی نہیں، انکساری ہے ہی نہیں، سارا میرے پاس سارا جھکنا ہے، میرے پاس ساری تواضع ہے، میرے پاس ساری نیاز مندی اور نیاز ہے، میرے رب کے پاس سارا ناز ہے، عظمت ہے، وقار ہے، المتکبر۔ عمر نے کہا تو سچ کہتا ہے۔ اس مجمع میں رونے والے کام بنوا جاتے ہیں، سب کو دلوا جاتے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، بابا جی کے آخری لمحات ہیں، جا رہے ہیں، پیسے کون دے گا؟ ایک رونے والا آیا، اس رونے والے نے اللہ کی مدد کے دروازے کھلائے اور غیب سے اللہ کی مدد ملی اور غیب سے اللہ کی مدد آئی اور غیب سے اللہ کے خزانوں سے سب نے پایا۔ میں اپنی بات پھر دہراؤں گا۔ نمبر 1 40 پردیسی، یاد ہے آج میں نے ابھی عرض کیا۔ نمبر 2 رجال الغیب۔ نمبر 3 بچے، جہاں بچے ہوں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 4 آج ختم القرآن ہے اور ختم قرآن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور نمبر 5 رونے والوں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، وہ سیاست میں بھی آگے ہیں، مجھ سے کہتے تھے میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑا شیطان تھا، ساری شرارتیں کرتا تھا، جب مار کا وقت ہوتا تھا آکے ابے دے جنگ بھی لڑوے نام، ابے کی ٹانگوں میں لپٹ جا کے روتا تھا۔ شرارتیں میں کرتا تھا، مار دوسرے کھاتے تھے۔ شرارتیں میں کرتا تھا، صرف ابے کی ٹانگوں سے جا کے لپٹ جاتا تھا اور روتا تھا، ابا مجھے چھوڑ دیتا تھا۔ ہمارے ایک چودھری صاحب تھے، تو وہ ان کا ایک بیٹا تھا۔ حضرت چودھری صاحب نے ایک دفعہ بیٹے کو مارا تو بیٹے کی عمر اس وقت 61-62 سال تھی، اس کا بازو توڑ دیا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، اسٹیشن پہ پہلے پہنچ جاتا تھا، ابا جی بیگ میں دے دو، ابا جی۔ اب اس نے سب کی شرارتیں لگانا، رونا خود میں نے دیکھا ہے، شروع کر دی۔
हालांकि सारा कसूर उसी का होता था, सारा कसूर उसी का होता था। रोता था। घर पहुंचते पहुंचते अब्बा जी ने बजाय उसको सजा देने के सबको सजा देते थे। उसका रोना, दुनिया का मक्र और फरेब का रोना काम देता है, अल्लाह के यहां रोना। और अल्लाह को रोना इतना पसंद है, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे रोना मुझे पसंद है, चलो रोना नहीं आता रोने वाली शक्ल बना ले तब भी कबूल है। सारी दुनिया बहरूपियों को पसंद नहीं करती, सारी दुनिया रूप को पसंद करती है, सच को पसंद करती है, बहरूप को पसंद नहीं करती। मेरा अल्लाह दो जगह बहरूप को पसंद करते हैं। एक, तुझे रोना नहीं आता रोने वाली शक्ल बना ले, कबूल कर लूंगा। दूसरा, अल्लाह कहता है दरूद पाक मेरे हबीब पे पढ़, अगर तेरा अंदर जज्बा सच्चा नहीं है, इखलास नहीं, दिखावा है, बहरूप के तौर पे पढ़ रहा है, तब भी मेरे हबीब पे दरूद पढ़, कबूल करूंगा। लेकिन मोमिन हमेशा इखलास से पढ़ता है, लिल्लाहियत से पढ़ता है। ये कबूलियत की घड़ियां, महबूबियत की घड़ियां हैं। अगली एक कबूलियत की घड़ी है, वह है ताकरात। हां, ताकरात। यहां एक कब्रिस्तान है, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह मुझे ले गए थे कब्रिस्तान में। ताकरात की निशानी है कि वहां कब्र में से सूरत रहमान की आवाज आएगी, कुरान अंदर से पढ़ने की आवाज आती है। ताकरात की निशानी है कि वहां साहिब कुरान जो भी हैं, हाफिज हैं, उसमें से कब्र में से सूरत रहमान की आवाज आएगी। और ये मैंने कई दफा सुनी है। और उसमें ताकरात की सारी अलामात नुमायां होती हैं। ताकरात आज शब कदर हो सकती है। नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह 2009 में गई, बड़ी लंबी उम्र पाई। कहने लगे मेरी नई नई शादी होके आई अपनी चची के घर, पहला मेरा रमजान था, हमारी दीवार के साथ कब्रिस्तान था, तो मैं सहरी के लिए उठी, सहरी बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए। तो मैंने कुरान की आवाज सुनी, एक दिन सुनी, दूसरे दिन सुनी। मैंने अपनी चची से, सास से कहा कि अम्मा कोई हाफिज है आके यहां कुरान पढ़ता है। कहने लगा बेटी जब मेरी शादी होके आई थी मेरे साथ भी यही था, मैंने भी यही समझा था। हर रमजान में कुरान की कब्र से आवाज आती है। और फिर कहा सिर्फ कुरान नहीं, देगे हिलने, कफगीर हिलने, जैसे चावल ठक ठक होती है उसमें पकने पकाने की जो देगों की आवाजें हैं वो भी आती हैं। और अगली बात कही, चावल को जब उबाल के छानते हैं पकाने के लिए एक मखसूस खुशबू उठती है, चावलों की ना एक मखसूस खुशबू होती है। कहा वो भी आती थी। तो मैंने कहा अम्मा मुझे कब्रिस्तान में ले जाएं। कहा हम कब्रिस्तान में गए, कब्र मिट चुकी थी, ना मालूम कितनी पुरानी थी, पर कब्र के अंदर से कुरान की आवाज आ रही थी और साफ आ रही थी। मुफ्ती वली हसन टोंकी रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मैं छोटा था, वालिद साहब फौत हो गए, हर रमजान में मेरे वालिद के कब्र से कुरान की आवाज आती थी। आज ताकरात है। और यहां कई खत्मे कुरान हुए हैं, हमारी हर बिल्डिंग में खत्मे कुरान हुए हैं, हर बिल्डिंग में खत्मे कुरान हुए हैं। इतने हाफिज के फ्लोरों पे हुए हैं, कमरों में हुए हैं। ताकरात में, ताकरात की बरकत के अल्लाह आसमान दुनिया पे इस पहले आसमान में तशरीफ लाते हैं और ऐलान फरमाते हैं, कोई मांगने वाला, कोई लेने वाला, कोई चाहने वाला, कोई रिस्क बढ़वाने वाला, कोई बरकत लेने वाला, कोई बख्त लेने वाला, कोई तवंगरी लेने वाला, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, ऐलान फरमाते हैं, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाते हैं। कबूलियत की 6 शर्तें मैंने बयान की हैं, 6 शर्तें हो गई। 7वीं सुने। फर्जक जब इस दुनिया से जाने लगा शायर था और उसके अंदर जिंदगी की बहुत सी चीजें थी, बहुत कमियां थी, बहुत ज्यादा थी। आखिरी वसीयत की कि मेरे बाल स्याह हैं, मेरे बालों पे आटा लगा दो, मैदा लगा दो, मेरे बाल को सफेद हो जाए।
अल्लाह के हुजूर जाऊं तो मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा क्या लाया? या अल्लाह मैंने सुना है तो सफेद बालों से हया करता है, मेरे पास कुछ नहीं, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, ना मैं सोनी ना दौलत पल्ले, क्योंकि यार मनावा हो ए दुख सानू हर दम रासी रोंदी ही मर जावा हो। मैं अल्लाह मैं बस ये लाया हूं। बहुत हो गया। बाद 10 साल किसी ने पूछा क्या बना, क्या हुआ? क्या अल्लाह के पास जब मैं गया ना तो अल्लाह ने मेरी सारी गलतियां गिनवाई और क्या लाया? या अल्लाह सफेद बाल लाया। तो खुद ही तो कहता है रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल बना लो। अल्लाह शक्ल बना के लाया हूं और मुझे पता है तो सफेद बालों से हया करता है और सारी कायनात को हया मिली ही तुझसे है। तो फरमाया, अल्लाह पाक फरमाते हैं हाँ ठीक है तो सच कहता है, हमने ये कर दिया। और कहा ऐसा हुआ। किसी ने विसाल के बाद, मौत के बाद पूछा क्या बना, क्या बना, क्या बना? कहने लगा जब अल्लाह के हुजूर गया ना तो अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया क्या बना? कहा अल्लाह पाक तेरी बस मोहब्बत में मैं सफेद बाल लाया हूं और आटा लगा के लाया हूं, सफेद बाल आटा लगा के लाया हूं। कहा अल्लाह ने मेरे इस उज्र को कबूल किया, अल्लाह ने मेरे इस उज्र को कबूल किया और मुझे माफ कर दिया। इस मजमे में अल्लाह की कितनी बंदियां सफेद बालों वाली, अल्लाह के कितने बंदे सफेद बालों वाले हैं और अल्लाह को सफेद बालों से हया आता है। एक और दलील है बड़ी ताकतवर, वो है तौबा करने वाले। अत्ताइबून अल-आबिदून, मेरा अल्लाह कहता है तौबा करने वाले पहले हैं, सजदे करने वालों से भी, इबादत करने वाले से हुए। आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून। ये दुआ पढ़ी है मैंने, दूसरी मैंने दुआ पढ़ी है शहर में दाखिल होने की। तौबा करने वाले। शहर का एक बदमाश था, सारा शहर उससे थक चुका था। शहर के बड़े मुअज्जिज़ीन ने मशवरा किया कि इसको शहर से निकाल दें। शहर दरवाजों में होता था, जैसे लाहौर शहर दरवाजों में अब भी है, इसको निकाल दें। छोटी सी बच्ची को उंगली साथ लगाया, शहर से निकल गया। चलते चलते जंगल वीराना आ गया, कौन जाने कैसे जाने। चलते चलते आखिरकार बेटी पूछने लगी, छोटी सी बच्ची मासूम, कि अब्बा इतना बड़ा जंगल है, इस जंगल से बड़ी भी कोई चीज है? इतना बस जंगल? उस बेचारी ने तो आज तक छोटा सा घर देखा था। कि हाँ, इस जंगल से बड़ी पहाड़ हैं, बहुत पहाड़ बड़े हैं। तो बच्ची थी, कहने लगी अब्बा पहाड़ों से बड़ी भी कोई चीज है? हाँ समंदर है, समंदर उससे ज्यादा बड़े। कहने लगे अब्बा समंदर से बड़ी भी कोई चीज है? आसमान है, आसमान उससे कहीं वसी है। कहने लगा अब्बा आसमानों से बड़ी भी कोई चीज है? कहा तेरे बाप के गुनाह और जराइम है। उसे क्या पता बाप के गुनाह और जराइम क्या होते हैं। कहने लगा अब्बा बाप के गुनाह और जराइम से बड़ी भी कोई चीज है? कहा मेरे रब की रहमत है, मेरे रब की रहमत है, मेरे रब की रहमत है। बस ये कहना था। आतिफ गैबी ने गैब से आवाज आई, मेरे बंदे मेरी रहमत को इतना पहचाने और इतना जाने, और फिर तू शहर से जा रहा, जा शहर में वापस जा, हमने ऐलान कर दिया जो तुझे देखेगा उसको भी बख्श देंगे, जो तुझे देखेगा उसको भी बख्श देंगे। कितने आज की रात तौबा करेंगे, कितने तौबा करके आए बैठे हैं, कितनों ने तौबा करके रब को मना लिया, किन्होंने फैसला कर लिया कि मौला वो जिंदगी थी एक, ये जिंदगी आज के बाद तुझे राजी, तेरे हबीब को राजी। कितने तौबा करने वाले हैं और वह अब इस काबिल है कि उनको देखा जाए तो कबूलियत हो जाए, उनका आना बरकत का जरिया है। तौबा करने वाले। बारिश नहीं हो रही, ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं दुआ करा रहे हैं, या अल्लाह बारिश दे दे। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ईसा, इसमें एक गुनहगार है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, उसको मजमे से निकाल दो, बारिश हो जाएगी। हज़रत ईसा ने ऐलान किया कि मजमे से निकलो। उसने खड़े खड़े, कोई दो नफल नहीं पढ़े, कोई किबला रुख नहीं हुआ, कोई वजू नहीं किया, कोई इसमें आजम नहीं पढ़ा, बस वहीं खड़े खड़े, हाथ नहीं उठाए, खड़े खड़े अल्लाह से
ऐ अल्लाह, सारी जिंदगी तूने पर्दे रखे हैं, सारी जिंदगी सतारी की है, आज पर्दे खुल जाएंगे, आज पर्दे फाश हो जाएंगे, बस तू माफ कर दे। आज तौबा करता हूं, और तौबा भी ऐसी करता हूं कि तौबा तो नसूह ऐसी कि आज के बाद कभी टूटेगी नहीं। तेरी मेहरबानी है, आज माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। बस खड़े खड़े वही वही ऐसा अल्लाह के साथ राजो नियाज किया, किसी को पता ही ना चला, किसी को पता ही ना चला, किसी को पता ही ना चला। बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। या अल्लाह, आपने तो कहा था कि इस बंदा बाहर निकलेगा, बंदा बाहर नहीं निकला। वो मुजरिम था जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी। ईसा, जिसकी वजह से रुकी हुई थी, अब उसी की वजह से हो रही है, अब उसी की वजह से हो रही है। या अल्लाह, मुझे वो बंदा तो दिखा दे जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी। ईसा, मेरा पैगंबर, जब मेरा दुश्मन था तो मैंने पर्दे रखे थे, अब तो दोस्त बन गया, अब पर्दे नहीं रखूंगा। आठवीं शर्त है, एक नवी शर्त बताता हूं। बारिश नहीं हो रही थी, लोग जमा थे, आहो बका हो रही है, चीखो पुकार हो रही है, चीखो पुकार हो रही है। नमाज इस्तिस्का पढ़ी, एक दिन, 2 दिन, आज तीसरा दिन है, बारिश के कोई आसार नहीं है। जानवर मर रहे हैं, बंदे तड़प रहे हैं, फसलें खत्म है, जमीन जल गई है, पानी के कतरे कतरे को तरस रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। एक परदेशी गुजरा, ऊंटनी के ऊपर एक बुढ़िया बैठी थी, चादर में लिपटी, और एक जवान उसकी ऊंटनी की लगाम पकड़ के परदेसी गुजर रहा था। पूछा, ये क्या है? मजमा सारे रो रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है? उन्हें बारिश नहीं हो रही, 3 दिन से बारिश मांग रहे, कह रहे अभी हो जाएगी। उन्हें दीवाना पागल है। उन्हें जाके ना मां का दामन पकड़ा, ए मेरा अल्लाह, मेरी मां जवानी में फौत हो गई थी, मेरा बाप जवानी में फौत हो गया था, और मेरी मां जवानी में बेवा हो गई थी। इसने जवानी बड़े फक्र फाके इज्जत आबरू के साथ गुजारी, तुझे इसकी इज्जत आबरू और फक्र फाकों का वास्ता बारिश कर दे। ओहो, बारिश कर दे। बस दुआ मांग के कहने लगा बारिश होगी, और ऊंटनी को तेजी से भगा के ले गया। यूं निकला नहीं, यूं निकला नहीं, जल थल हो गई। कितने ऐसे बैठे हैं जिनके वसीले से दुआएं मांगे कबूल हो जाती है। इस मजमे में कितने ऐसे बैठे होंगे जिनका वसीला पेश करके। अच्छी बात बताऊं, जब बारिश नहीं होती थी, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अब्बास को, हुजूर के चचा को ले गए कि अल्लाह, पहले तेरे हबीब होते थे, उनके वसीले से दुआ करते थे, पहले तेरे हबीब होते थे, उनके वसीले से दुआ करते थे, अब हजरत अब्बास हैं, इनके वसीले से उनको ले जाते थे और वो दुआ फरमाते थे, और हजरत अब्बास उनके वसीले से दुआएं कबूल होती थी और बारिशें हो जाती थी, बारिशें हो जाती थी। वसीला, वसीला, वसीले से दुआएं कबूल हो जाती। मछली वाला वाकया है ना, कि मछली लेके आ रहे थे तो एक जवान ने कहा कि बाबा जी, मछली आपकी भारी है, मैं उठा लूं, आप कहें तो, और जितने पैसे दे दे मजदूरी। नमाज का वक्त हुआ तो उसने मछली रख दी और कहने लगा, नमाज का वक्त मैं अब नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ूंगा। और वो नमाज पढ़ के, इसने भी पढ़ ली, घर जाके बात की। जवान है, नेक है, मजदूर है, पर नमाज के वक्त में उसने सब कुछ छोड़ दिया। बीवी कहने लगी उससे कहें, बीवी कहने लगी उससे कहें, ये वाकया फज़ाइल अमाल में है। बीवी कहने लगी उससे कहें कि वो नमाज पढ़ के वो भी हमारे साथ खाना खा के चला जाए, इफ्तार। तो उससे कहा, तो उसने कहा मेरा रोजा है। तो कहा तुम रह जाओ, इफ्तार करके चले जाना। कहा ठीक है। उसे इफ्तार कराया, रात को रहने की जगह दी। सुबह देखा तो वो परदेसी चला गया था। लेकिन एक अनोखा वाकया हुआ, और अनोखा वाकया ये हुआ, अनोखा वाकया ये हुआ, अनोखा वाकया ये हुआ।
कि एक अपाहज, एक लूली लंगड़ी औरत थी, वो ठीक ठाक चल रही थी। तो पूछा ये क्यों चल रही है ठीक ठाक? कहा कि आपका जो वो परदेसी मुसाफिर था, मैंने उसके वसीले से दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उसके वसीले को ऐसा कबूल किया, मैं ठीक ठाक हो गई, मैं सेहतमंद हो गई, मैं तंदुरुस्त हो गई। कौन ऐसे इस मजमे में होगा? मेरे सामने तो आज भी वो सामने मेरे सामने है, वो रिजालुल गैब भी ऐसा है जिसके वसीले से दुआ मांगी जाए तो कबूल हो जाए। पता नहीं कितने बंदे इस मजमे में ऐसे हैं जिनके वसीले से दुआ मांगी जाए, जिनके वसीले से दुआ मांगी जाए और दुआएं कबूल हो जाए। ये नवा क्या है? नवी दलील है, दलील नंबर 9 है। दलील नंबर 9 है वसीले से दुआ मांगी जाए। और दलील नंबर 10, एक बुजुर्ग थे, हज के सफर में तशरीफ ले जा रहे थे। हज के सफर, प्यास लगी, प्यास लगी। कुएं को देखा तो कुएं का पानी गहरा है, अपने साथ रस्सी चीजें बांधी, पानी पे ना पहुंचे, प्यास से तड़प रहे हैं। एक बच्ची आई, बाबा जी पानी चाहिए। अपना लुआब कुएं में डाला और एकदम पानी जोश मार के ऊपर आया और उन्होंने मशकीजा भरा, पानी पिया। बच्ची जाने लगी ना तो कहने लगी मेरी बात तो सुन, हम तो बुजुर्ग और वली हैं, तू तो विलायत की सरदार है बच्ची, ये सब किस वजह से है? कहा कि दरूद पाक की वजह से। मैं एक दरूद पढ़ती हूं, उस दरूद की बरकत से मेरे लुआब की यह तासीर है, उस बच्ची की दुआ की क्या तासीर होगी? अगर उसका वजूद मिल जाए महफिल में, उसकी क्या तासीर होगी? यहां ऐसे जिक्र करने वाले, दरूद पढ़ने वाले, ऐसा जिक्र करने वाले, ऐसा अल्लाह के साथ ताल्लुक जमाने वाले, ऐसा डूब के मांगने वाले। देखिए अल्लाह ने ना सिफात मुख्तलिफ इंसानों में तकसीम की है। कहीं खिदमत की सिफत है, किसी के अंदर इबादत की सिफत है, कहीं तस्बीह की सिफत है, कहीं सजदों की सिफत है। अल्लाह ने सिफात तकसीम की है। कोई ऐसा इस मजमे में कोई ऐसा बंदा होगा जिस बंदे की बरकत से उसने कोई ऐसा जिक्र किया है कि उसके लुआब में भी तासीर है, उसके वजूद में भी तासीर है, उसकी आमीन में भी तासीर है, उसकी दुआओं में भी तासीर है, तासीर है। आज ऐसा मुबारक मजमा है। ये मेरे पास 10 दलीलें हैं, 10 और हैं, 10 दलीलें हैं। मैं इन दलीलों को फिर दोहराता हूं। सबसे पहले परदेशियों का मजमा, 40 परदेसी जमा हो जाएं जहां दुआएं मांगे कबूल हो जाती है। दूसरा रिजालुल गैब। तीसरा बच्चों की दुआओं की आमीन। चौथा खत्म कुरान की कबूलियत। पांचवा रोने वाले कम बनवा देते हैं, सिसकने वाले। और छठा ताक रात। और सातवां सफेद बाल। और आठवां तौबा करने वाले। और नौवां वसीला, वसीले के वाकयात मैंने बयान किए हैं। और 10वां जिक्र तस्बीह और दरूद पढ़ने वाले। इसलिए फरमाया जहां कबूलियत का मजमा हो, फिर वहां कबूलियत पे जो शक करे रब उस पे नाराज होता है। इसलिए हाजी के बारे में फरमाया जब मैदान अराफात से निकले और अपनी कबूलियत पे शक करे रब नाराज होता है। कबूलियत, ये सिर्फ मैंने आज कबूलियत की 10 शराइत बयान की हैं, तो बेशुमार है। और सबसे बड़ी शर्त उसकी करीमी है, उसकी रहीमी है, उसका करम है, उसका फजल है, उसकी अता है, उसकी शफकत है, उसकी मेहरबानी सबसे बड़ी दलील है। ये जो कुछ भी कबूलियत है उसकी मेहरबानी से है। बच्चों की दुआएं भी उसकी मेहरबानी से, परदेशियों की कबूलियत भी उसकी मेहरबानी से, खत्म कुरान उसकी मेहरबानी से, रोने वाले की कबूलियत उसकी मेहरबानी से, ताकरात उसकी मेहरबानी से मिली है, सफेद बाल भी उसकी करम और रहमत से कबूलियत का जरिया बनते हैं, और तौबा भी कबूल कर ले उसकी मेहरबानी है, और वसीला भी उसकी अता है, और दरूद पाक भी उसका करम है।
یہ آج 10 شرائط ہیں، خوش قسمت ہیں جنہوں نے رمضان گزارا، اور خوش قسمت ہے جو عید تک یہاں اپنی پوری ہمتوں اور محنتوں کے بعد، کیونکہ ایک بات بتا دوں، ختم قرآن کے بعد اندر کا کہتا ہے، اندر کا من، رمضان ختم ہو گئے چل اپنے گھر، یہ اندر کا من کہتا ہے نکل یہاں سے، یہ اندر کی دنیا کہتی ہے نکل یہاں سے تاکہ ادھوری دنیا میں چلا جائے۔ خیال کیجئے گا 3 راتیں اور ہیں، ان 3-4 راتوں میں اپنے دل کو بہلا لیں، وہ صبح کو آئیں تو کرو باتیں میں دوپہر، اور چاہوں کہ دن تھوڑا سا ڈھل جائے تو اچھا، ڈھل جائے تو دن تو کرو اس طرح شام، وہ آج سے یوں ہی کل جائے تو اچھا، پھر کل ہو تو کہوں اس طرح کل کی طرح سے، دل اس کا کاش یہیں بہل جائے تو اچھا۔ انشاءاللہ یہ 10 شرائط کیا دل کو لگتی بھی ہیں اور بھاتی بھی ہیں یا نہیں لگتی؟ بولے، دل کو لگتی ہے، بھاتی ہے یا نہیں لگتی؟ نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں نا، دل کو نہیں لگتی تو نہیں لگتی، تو پھر واپس وہی چیز کر لو کہ اللہ پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ شیطان ہے، تو وہ شیطانی والی مثالیں سناتا ہے۔ ابھی مجھے تراویح کے بعد ایک مثال سنائی، اس نے کہا 3 ملکوں کے بندے تھے، ایک اس جگہ کا، ایک اس جگہ کا، اس جگہ کا، فرشتہ آیا، مانگو کیا مانگتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو، اس نے کہا بنا دیا، اس نے کہا مانگ، اس نے کہا فلاں دنیا کا دولت مند بنا دو، اس نے کہا مانگ لیا، اس نے کہا تو مانگ، اس نے کہا ان کو واپس وہیں لے آؤ، غریب بنا دو واپس، ان کو واپس غریب بنا دو، بس میری یہ چاہت ہے۔ یہ 10 شرائط ہیں قبولیت کی، قبولیت کے 10 شرائط ہیں۔ ہر روز مجرمانہ حاضری میں اللہ کی بارگاہ میں مجرمانہ حاضری ہے، اور اس میں جو اسم پڑھتے ہیں نا، اللہم بسمک کہف کتمیر، ساری کائنات میں جو تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں جو حروف ہیں، اللہ کے نام ہیں، عظمت والی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری جمع کریں تو اس میں یہ نور ہے، اور اس سے جادو، بندشیں، زنجیریں ٹوٹتی ہیں، اور پھر مجرمانہ حاضری وہی ہے کہ رونا نہیں آتا چلو رونے والی شکل، اے اللہ میں مجرم ہوں اور مجرم بن کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور تو مجرم کو قبول کر لے، مجرمانہ حاضری، مجرموں جیسی شکل بنا کر، مجرموں سے صورت بنا کر، سر جھکا کر، رونا یا رونے والی حالت بنا کر، رونا یا رونے والی حالت بنا کر، اور ہم کہیں گے اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر، اللہم بسمک کہف کتمیر۔ آمین۔ ہمارا روز کا کشکول کا عمل ہوتا ہے، تونگری کشکول کا عمل، آج وہ عمل بھی ہوگا، اور اس کے اندر جو تھیلی ہے، تھیلی میں سورۃ کوثر کا عمل بھی۔ یہ وہ گٹھلیاں ہیں جس ہر گٹھلی پہ لاکھوں کروڑوں درود، کلمہ، سورۃ اخلاص، اللہ کا نام پڑھا گیا، یہ وہ گٹھلیاں ہیں۔ کبھی بھی گٹھلی ایک بھی ساتھ نہ لے جائیے گا، عید کے بعد جب گھر جائیں تو آپ کو تھیلی بھی اور کشکول بھی ساتھ لے جانے کی اجازت ہے، تھیلی بھی اور کشکول بھی ساتھ لے جانے کی، لیکن کبھی ایک گٹھلی ساتھ نہ لے جائیے گا۔ ہاتھ میں رکھ کے
इसमें 45 बार पढ़ेंगे या कादिर हो या नाफे हो। जिनके पास नहीं है वो हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते जाएं, वो भी इंशाल्लाह अमल में शामिल हैं। और जो पूरी दुनिया में खिदमत वाले हैं उनका भी तसव्वुर करेंगे। और जो बंदा 45 बार या कादिर हो या नाफे हो पढ़ता है उसकी मुश्किलें टल जाती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, दिल की मुरादें पूरी होती हैं। आए पढ़ें डूब कर या कादिर हो या नाफे। आमीन। अब सिर्फ थैली अपने हाथ में ले लें और इस पे हम सूरत कौसर पढ़ेंगे और दम करेंगे। आज ये साल के बाद अमल होता है सूरत कौसर का, ये दम करेंगे सूरत कौसर का। मेरे साथ पढ़ेंगे सूरत कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर। और आपकी जेब में अगर कोई थैली है वो भी निकाल सकते हैं, उस पे भी सूरत कौसर के अमल की तजदीद हो जाए। मैं भी अपनी थैली निकाल रहा हूं, जेब में थैली है, उस थैली में भी अमल हो जाए, इसमें भी अमल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों थैलियों पे दम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपनी दोनों थैलियों पे दम कर दें। बाबरकत अमल है, साल के बाद होता है और सादतमंद अमल है, बहुत मुबारक अमल है। हम तावीज लिखते हैं रोजाना और कापी का अमल में या अल्लाह लिखते हैं, अपनी मुरादें, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियों का तस्वर करके। आज दो तावीज लिखने हैं, आज दो तावीज लिखने हैं। एक तावीज हा है, आज दो तावीज लिखने हैं। हा कहीं नहीं लिखा हुआ, हा कितनी है, ताकत नहीं है। हा है और या है, दो तावीज हैं। कुरान पाक में, कुरान पाक में जो हर्फ हा है, नहीं आज लिखा, हाँ लिखा, लिखना शुरू करें हा पढ़ते हुए। आज नहीं लिखा, तादाद नहीं लिखी, भूल गए, लिखो, ये गलती है। हा लिखना शुरू करें, हा कहते हुए हा के तावीज में अपनी मुरादें, अपनी दर्द, अपनी हाजतें इस तरह या की तावीज में लिखें। फिर हम या अल्लाह की कॉपी लिखेंगे, लिखें।
माशाल्लाह दोनों तावीज पुर कर लिए, अल्लाह मुबारक करे। काफी का अमल रोज लिखते हैं, या अल्लाह काफी का अमल और अपने दिल की मुरादें, हाजतें, दर्द, गम लिखते हैं या अल्लाह। और फिर ये सफ़े मुकम्मल करेंगे और इन सफ़ों को लपेटकर कागज को आटे के पेड़े में डालकर किसी बहते दरिया, नहर, झील, समंदर जहां साफ पानी, मछलियां हों, वहां डालेंगे। दिल की बड़ी मुरादें, मन की बड़ी मुरादें, मुश्किलें पूरी होती हैं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जिनके पास नहीं है वो हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखना शुरू कर दें, अमल में शामिल हो जाएंगे। अगर कापी नहीं है तो वो उंगली से लिखें या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब ये हुरूफ का जितना भी है, असल में ये कुल 29 हुरूफ हैं, कुल 29 हुरूफ हैं। पूरा आज हमने इसको 27 में इसलिए किया, आप तो माशाअल्लाह ईद के बाद जाने वाले हैं, कुछ हजरत बाहर से तशरीफ लाए हैं, उनकी खातिर हमने हुरूफ पूरे किए हैं। इनको मैं मटके में डालूंगा और मटके में डाल के ये सारा अमल होगा। आप भी रोजाना कोई तावीज है तो वो इलाहदा करके मटके में डालते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मटके में डालेंगे और मटके में डालने के बाद इसका अमल होगा। ये सामने ले बस ठीक। ये अमल मैं कर रहा हूं इसमें माशाल्लाह तावीज हैं सारे के सारे। ये देखे ना लोग उन्हें डाले हुए हैं, ये तावीज बहुत ज्यादा, ओ बाहर बाहर गिर गए, बहुत ज्यादा लोगों ने डाले हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जो इधर से गिरे हैं वो दे दो मुझे, बाकी आप खुद बाद में डाल दीजिएगा। तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना अंत मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये अमल बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। और फिर इस पे अमल हो के अल्लाह के फजल से ये जमीन में दफन किया जाता है। बहुत मुबारक अमल है। 29 हरूफ कुरान पाक के हर हर्फ का जो है वो हर हर्फ का, यहां पढ़ रहे बस ठीक है बैठ जाओ, हर हर्फ का एक पूरा तावीज है और ये सदियों से आजमूदा अमल है। अबकरी का कोई अमल ऐसा नहीं जो अपनी तरफ से हो। हर अमल का किताबों में 100% सबूत मौजूद है और सदियों से यह तजर्बात में, मुशाहिदात में, अल्लाह के नेक बंदों के, हमारे बड़ों के तजर्बात में ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह चली आ रही है, बहुत ज्यादा बरकत के साथ, बहुत ज्यादा सादत के साथ। अब हमारा एक अमल है, तावीजात का अमल है। आपको 3 तावीज मिले हैं। एक तावीज सुर्ख रंग, 4 तावीज मिले हैं। एक तावीज सुर्ख रंग का है और एक तावीज पीले रंग का है, एक सब्ज रंग का है, एक नीले रंग का है। आपको 4 तावीज मिले हैं। हम सबसे पहले सुर्ख रंग के तावीज का अमल करेंगे, सुर्ख रंग के तावीज का। और ये अस्माए हुस्ना पढ़ना है हमने, अल्लाह के मुबारक नाम पढ़ने हैं। लाल रंग का जो तावीज है, इस तावीज के फेरने से ये पेशानी पर फेरें और ये तस्वर करें कि मेरी पेशानी में
रोशन लकीरें अल्लाह ने लिख दी हैं और मेरी पेशानी पे अल्लाह ने करम किया है। ये वो तावीज है जो सदियों से आजमूदा है। ये तावीज सुर्ख रंग का, इसके फायदे सुन ले। ये अंदर की बीमारी, जादू, जिन्नात, शैतानी चीजों को चुन लेता है, खत्म कर देता है और इन चीजों को चूस कर जज्ब कर लेते हैं और जिसके अंदर सुकून, चैन, नूर, रूहानियत और मेहरबानी और अल्लाह की रहमत और शफकत जिस्म में दाखिल हो जाती है। यह सुर्ख तावीज का फायदा है। सुन लिया सुर्ख तावीज का फायदा? सुन लिया। सुर्ख तावीज जो हमारा लाल तावीज है वो सर से लेकर गर्दन तक फेरना है। सर से लेकर गर्दन तक इसको फेरना है और एक लफ्ज पढ़ना है, या नूरो या कवियो, या नूरो या कवियो, या नूरो या कवियो। और इसको फेरते हुए तसव्वुर करना है कि जादू, जिन्नात, सरदर्द, टेंशन, डिप्रेशन और अल्लाह के नाम की ताकत और तासीर, इसको हमने सर से लेकर गर्दन तक फेरना है। सर से लेकर गर्दन तक, सर के ऊपर भी, सर के दाएं भी, बाएं भी, अपनी पेशानी पे फेरते हुए कि अल्लाह इन पेशानियों की लकीरों में नूर भर दे, रहमत भर दे, बख्त भर दे। और इस चेहरे पे फेरते हुए अल्लाह इस चेहरों को दुनिया आखिरत की रुसवाइयों से, अल्लाह जिल्लतों इल्लतों से बचा दे। ये बहुत ताकतवर तावीज है। हर तावीज सदियों पुराने आजमूदा तजर्बात में है और हर तावीज वो है जो अल्लाह के वलियों ने सदियों कराया। या नूरो या कवियो पढ़ते हुए, या नूरो या कवि। आंखों पर फेरे इस नियत से कि अल्लाह इन आंखों को अपना नूर अता फरमा, बरकत अता फरमा। अल्लाह इन आंखों के अंदर हमेशा ऐसा नूर दे जो तेरे हबीब की जियारत, तेरी जियारत करें। इन आंखों को दुनिया आखिरत के जाय होने से बचा। नाक पर फेरे, अल्लाह नाक की बीमारियां और नाक को जिल्लतों से बचा, परेशानियों से बचा। हमेशा नाक ऊंची रहे, वकार, इज्जत, शान शौकत रहे। और रुखसार पर फेरे और अपने कानों पर फेरे, अल्लाह इसको नजर बद खत्म कर दे। चेहरे पर दाग, धब्बे, बीमारियां, छाइयां, अल्लाह कानों के अमराज, कानों को झूठ, गिबत, आंखों को बदनजरी, अल्लाह इन चीजों से बचा दे। हमेशा रहमतें फेरे। होंठों पर फेरे, तस्वर करें अल्लाह इन होंठों को खैर के बोल बोलवा, बरकत के बोल, रहमत के बोल, आफियत के बोल, मीठे बोल, नफरत फिरकावारियत ना हो, दिलों को तोड़ना ना हो। अल्लाह बादशाहों के लिए हमारे बोलों में गालियां और तबसरे ना हो। इन होंठों से नूर निकले, रूह निकले, रूहानियत निकले। गर्दन पर फेरे और गर्दन पे चारों तरफ फेरे। अल्लाह इस गर्दन को सिवाय अपनी जात के किसी के सामने ना झुकाना। वो वक्त ना आ जाए ये गर्दन किसी की जात के लिए, गैर के लिए। या नूरो या कवि हो, या नूरो या कवि, या नूरो या। आमीन। अब इस तावीज को अपनी गोद में रखें। अब हमारे पास अगला तावीज है, वो सब्ज रंग का। देखें आपके पास तावीज है सब्ज रंग का, सब्ज रंग का तावीज है। इस तावीज को हमने गर्दन से सीने तक, नाफ के ऊपर तक इसको फेरना है। गर्दन से सीने तक, नाफ के ऊपर तक इसको फेरना है। और लफ्ज जो पढ़ना है अल्लाह के दो नाम, या वासियो या वलियो, या वासियो या वलियो, ये फेरना है। और अब फेरते जाएं, मैं साथ साथ इसके फायदे पढ़ता जाता हूं। गर्दन से सीने तक फेरते जाएं, लिबास के ऊपर से। या अल्लाह इस सीने की बीमारियों को खत्म कर दे, दिल की बीमारियों को खत्म कर दे, इस सीने को खोट से दूर कर दे, दिल को नूर से भर दे, नूरानियत से भर दे, रूह से भर दे, रूहानियत से भर दे। और इस रूहानियत और नूरानियत की वजह से इस दिल को मुनकर नकीर के सवालों के जवाब अता फरमा दे और कब्र की रोशनी, कब्र का नूर दे दे। अल्लाह इस दिल को वसाविस खत्म कर दे, खदशात खत्म कर दे, खोट, बुराइयां, मनफी कैफियतें खत्म कर दे। इस दिल को मार्फत और नूर से भर दे। हमारे सीने को अपनी मार्फत और नूर के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हमारे सीने के अंदर नूर ही नूर हो, सरूर ही सरूर हो, रहमत ही रहमत हो। अल्लाह इस सीने को बुग़्ज़ से, कीने से, अदावत से
और नफरत से पाक कर दे, हमेशा सीने को रहमत, बरकत और अता से भर दे। आमीन आमीन। बहुत ताकतवर अमल है। अब हमारा तीसरा तावीज है, वो पीले रंग का, येलो पीले रंग का तावीज है, पीले रंग का। इस तावीज को सीने से नाफ के ऊपर तक फेरना है। नाफ नहीं, नाफ, नाफ के ऊपर फेरना है, नाफ, और सीने और नाफ के दरमियान फेरना है, नाफ के ऊपर। और इसको पढ़ना है या बाकियो या बदियो, या बाकी हो या बाकियो, हाँ, या बाकियो या बदियो। और इसको नाफ के ऊपर फेरना है। एक बात बताऊं, ये नाफ पे उंगली रख के हमारे अकाबर इसको लतीफा नफ्स कहते हैं। नाफ के अंदर उंगली रख के या कहारो पढ़ा जाता है। नाफ के अंदर उंगली रख के आउज़ बिल्लाह 66 बार अमल पढ़ा जाता है। ये बहुत ताकतवर अमल है। इसको नाफ के ऊपर फेरते हुए पढ़ेंगे, या बाकियो या बदियो, या बाकियो। अल्लाह इस नाफ को शर से बचा दे, अल्लाह इस नाफ के जरिए से अल्लाह तू हमें अपनी जात से दूर न कर, और शैतान वसाविस से बता दे। अल्लाह पेट की बीमारियां खत्म कर दे, पित्ते की बीमारियां कभी ना हो, अल्लाह आंतों की बीमारियां कभी ना हो। अल्लाह इस पेट को हमेशा हलाल लुकमा, तैयब ताहिर लुकमे अता फरमा। इस पेट को नूर से भर दे, रहमत से भर दे, कभी भूख फक्र से बचा। अल्लाह इस नाफ में नूर भर दे, और नूर इस दिल में पहुंच जाए, और दिल नाफ की वजह से अल्लाह तेरे नूर से भर जाए। इस पेट को और सीने को नूर से भर दे। अल्लाह कभी हराम न दे, और हराम की राहों से बचा दे, और नाफ के नीचे की बीमारियां खत्म हो जाएं। या बाकियो या बदियो पढ़ते हुए अल्लाह नाफ के नीचे की बीमारियां खत्म हो जाएं, मसाने की बीमारियां, ऐब खत्म हो जाएं, रोग खत्म हो जाएं। अल्लाह इन नूरानी हरूफ की वजह से जो नाफ के ऊपर हम तावीज फेर रहे हैं, नाफ के नीचे हम तावीज नहीं फेर सकते, लेकिन अल्लाह नाफ के नीचे के ऐब, रोग, दुख, बीमारियां खत्म हो जाएं, परेशानियां खत्म हो जाएं, और इस तावीज की बरकत से अल्लाह पाक सब बलाएं, आफतें और जिल्लतें खत्म हो जाएं। या बाकियो या बदियो, या बाकियो या बदियो, या बाकियो या बदियो, या बाकियो या बदियो। अब अगला हमारा तावीज है, चौथा नीले रंग का तावीज है। अपने पास रखें। कौन सा तावीज है? नीले रंग का तावीज है। इस तावीज को सिर्फ घुटनों पर फेरना है, सिर्फ घुटनों पर, और जैसे मैं कहूंगा वैसे आप साथ पढ़ते जाएंगे। इसके लिए अल्लाह के दो नाम हैं, या कबीरो या वाजिदो, या कबीरो या कबीरो, या कबीरो या वाजिदो। घुटने पे दाएं पे फेरे, फिर बाएं पे फेरे, घुटनों पे फेरे, या कबीरो या वाजिदो। अल्लाह इनको घुटनों को हमेशा दर्दों से, चोटों से बचा, अल्लाह माजूरी से बचा, अल्लाह मजबूरी से बचा। अल्लाह इन टांगों को, इन घुटनों को खैर के कदमों में चला, रहमत के कदमों में चला, बरकत के कदमों में चला, और खैर की राहें अता फरमा। इन नामों की वजह से हमारी नस्लों के घुटने, कदम, टांगे सदा बरकत के कदम, फदा गरफत के फासले तय करते रहे। अल्लाह शर के फासलों से बचा, इनको माजूरियों से बचा, कटने से बचा, जुदा होने से बचा, कुचला जाने से बचा, माजूरी मोहताजी से बचा। अपनी रहमत से रहम फरमा, इन तखनों को, इन घुटनों को सदा खैर में रख दे। चलता चलता हमें अपनी बारगाह में बुला ले। अल्लाह इन तखनों और घुटनों को तवाफ में चला, उम्रे में चला, हज में चला, सेहत में चला, आफियत में चला, रहमत में चला, बरकत में चला, और खैर में चला। या पढ़ो, या कबीरो या वाजिदो, या कबीरो या वाजिदो। आमीन आमीन। ये चारों तावीज क्या करने हैं? मटके में डालने हैं। बाहर मटके पड़े हुए हैं, मैं आपके सामने मटके में डाल रहा हूं।
باہر جگہ جگہ ہر جگہ مٹکے پڑے ہیں، ہر جگہ ان کو مٹکوں میں ڈالنے ہیں، ان پہ عمل ہوتے ہیں، عمل ہونے کے بعد پاک مٹی میں دفن ہوتے ہیں۔ بہت طاقتور عمل مختصر وقت میں آپ نے کیا، بہت بابرکت عمل ہے۔ اب ہمارا عمل سورت رحمان کا ہے۔ آپ کے پاس دھاگا ہے، ان دھاگوں پہ بڑی محنت کی گئی ہے، ان دھاگوں کی تاروں کو بنایا گیا ہے اور بہت محنت کی گئی ہے، جان مارے جائے گئے۔ ہمارے حافظ صاحب جنہوں نے قرآن پڑھایا، سبحان اللہ، کیسا قرآن پڑھایا، اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن پڑھایا۔ اب وہ سورت رحمان پڑھتے جائیں گے۔ جب سورت رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آنا ہے نا، میں نے زور سے آمین کہنا ہے، آپ نے گرہتے دینی ہے، انہوں نے پڑھتے جانا ہے۔ اس کو ذرا تیزی سے عمل، توجہ سے عمل کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور یہ دھاگا گلے میں باندھیں، کمر میں باندھ سکتے ہیں اور بازو میں باندھ سکتے ہیں، نہ باندھیں اپنی جیب میں رکھیں، تھیلی میں، پرس میں رکھیں اور اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس دھاگے میں اندر یہ لڑائیوں کے لیے، دشمنیوں کے لیے، روحانی بیماریوں کے لیے، ٹانگوں کے درد، پٹھوں کے درد کے لیے، کالے یرکان، پیلے یرکان، آنکھوں کی بیماریوں کے لیے، جسم کے لا علاج ہیپیٹائٹس، کمر موہوں کے درد کے لیے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، خطرناک بیماریوں کے لیے، جو خاتون پہنے اس کو بے اولادی کے لیے، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، ہر قسم کی رحمت ہوگی، حفاظت ہوگی، برکت ہوگی۔ اس دھاگے کو پہن کے جائیں، ہر جگہ فتح اور کامیابی ہوگی۔ اپنے پاس پہنے یا رکھیں، پہنے یا رکھیں۔ پہلے درود پاک پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، درود شفا پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان
هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان آمين. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمين. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما آمين. تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء آمين. ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. واہ مولا واہ، صدیوں سے آزمودہ یہ عمل ہے. 31 بار آتی ہے فبأي آلاء، 31 بار اور 31 گرہیں. میں کہتا ہوں جادو پہ گرہیں لگ جائیں، جنات پہ گرہیں لگ جائیں، نظر بد پہ گرہیں لگ جائیں اور میرے جادو اور جنات اور نظر بد کی گرہیں کھل جائیں. یہ وہ عمل ہے. اور پھر نیلا دھاگا ہو، نیلے دھاگے کی تاریں ہوں، پوری 7 دھاگے ہوں اور ان پہ عمل کیا جائے. یہ وہ عمل کیا ہے آپ نے، یہ وہ عمل کیا ہے. انہیں کہا جی میں اتنا دور گیا، ایک بابا جی داغا پڑھ کے دیتے ہیں، اس میں گرہ لگا کے دیتے ہیں، جس کو پہنائے بے اولادی ختم، نامرادی ختم، بے آس امید ختم، اور لا علاج بیماریوں جادو کے لیے، پریشانیوں مشکلوں کے لیے. اور بابا جی عمل نہیں بتاتے، اور تسبیح خانے کا بابا جی کہتے ہیں عمل بھی بتاتا ہوں، دھاگا بھی مفت دیتا ہوں، ساتھ عمل کراتا بھی. دھاگا بیچارے بندے لگے دھاگے اس کی تاریں بنا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، بنا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی پتاشے ہیں، کبھی کٹورے ہیں، کبھی تھیلیاں ہیں، کبھی تحفے ہیں. سبحان اللہ. اے میرا سخی آقا، تسبیح خانہ قیامت تک ایسی آباد اور شاد رہے، ایسے دائیں بائیں سے وسعت دے، ایسی مجموع کے مجمع پوری دنیا کے خیر پاتے رہیں، فیض پاتے رہیں، فتنے ٹوٹتے رہیں، فتنے بکھرتے رہیں، خیریں سمٹتی رہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ دھاگے کا بہت طاقتور عمل ہے، وہ دھاگے کا بہت طاقتور عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے. اس سے پہلے میں اپنی تھیلی میں رکھ لوں اس دھاگے کو. پچھلے سال والا بھی ہے، دکھاؤں؟ چلو میں آپ دکھاؤں، میں آپ کو پچھلے سال والا دکھاؤں. اللہ آپ میری لاج رکھ لینا، کٹ نہ گراؤ گے تلے. یہ پچھلے سال والا، یہ اس سال والا. یہ اب اس کو ساتھ رکھ لوں. یہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے ہیں، پہلے میری مجبوری ہیں، پہلے میری مجبوری ہیں. یہ چیزیں صرف آپ کے لیے نہیں ہیں. دیکھو اگر شوبدے ہو نا تو صرف آپ کے لیے ہوں، اور حقیقتیں ہیں تو میں بھی محتاج ہوں، میں بھی محتاج ہوں. یہ ہمارے حضرات بڑوں کی کتابوں میں یہ عمل صدیوں سے آزمودہ ہے، ثبوت کے ساتھ موجود ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے، اس کی ناواقفیت ہے. یہ عمل بہت زبردست عمل ہے. آئیں ایک اور عمل کرتے ہیں. برکتی نوٹ آپ کو ملا ہے، ملا ہے نہیں ملا؟
मिला है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इसके जरिए से अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारे एक दोस्त ने खलूस से कोशिश करके ये नोट हासिल किए, मेरे ख्याल में छपना बंद हो गए, छपना बंद हो गए, छपना बंद हो गए। अल्लाह अकबर, चीज का पेट्रोल का भी बहरान है और नोटों का भी बहरान है, छपना बंद हो गए। इसको हाथ में रख के, इसको हाथ में रख के इसमें मैं आपको दम करूंगा। आपने सिर्फ एक चीज पढ़नी है, इसको हाथ में रख के आपने एक चीज पढ़नी है, सिर्फ 3 बार आपने कुल हु अल्लाह पढ़नी है, और वो हदिया देनी है तमाम फरिश्तों को, तमाम जिन्नात को और तमाम नेक अरवाह को। बस सिर्फ आपने 3 दफा कुल हु अल्लाह पढ़ना है और मैं इसको दम करूंगा। बिस्मिल्लाह। कुल हु अल्लाह। मुबारक हो, ये आपको हदिया नोट का आपके लिए है। दमशुदा तेल और पानी आपको हदिया मिला है, इस पानी की हिफाजत कीजिएगा। हमारी कोशिश है मजबूत ड्रॉपर लें, मजबूत, ताकि आप घर तक पहुंचे। इस तेल को जैतून के तेल में, इस तेल को सरसों के तेल में, इस तेल को कुकिंग ऑयल में, इस तेल को घी में भी डाल सकते हैं, खाने में, पकाने में। और ये पानी अपने घर के पानी में, इसी पानी से आटा गूंदना, इसी पानी को चाय पानी में इस्तेमाल करना, नहाने में नहीं। ये तेल बीमारियों के लिए, इस तेल को भवों पे लगाएं जब बीमारी हो, कानों के अंदर डालें, कानों के लो पे लगाएं, और इस नाक के नाक पे लगाएं, इसको बदन पे मलें और तेल बढ़ाते रहें बीमारियों के लिए, शिफा के लिए, जादू जिन्नात के लिए, सिफली अमल के लिए, बहुत ज्यादा पुराने रोगों के लिए, बहुत ज्यादा पुरानी तकलीफों के लिए। इस तेल को कभी खत्म नहीं होने देना, यह तेल हमेशा बढ़ता जाए। इसको भवों पे लगाएं, कानों के लूह पे लगाएं, कान के अंदर, नाक के अंदर, और सालन पकाने में इसके कुछ कतरे डाल दें, ये डाल दें। और इस तेल के ऊपर लाखों दरूद पढ़ा गया, जिक्र पढ़ा गया, आयतल कुर्सी पढ़ी गई, मावज़तन फलक और नास पढ़ी गई, इस तेल पे सूरतुल काफिरून पढ़ी गई, इस तेल पे लाखों दफा या मुसब्बिबुल अस्बाब सब्बिब ली अल खैर और बेशुमार अज़कार अल्हम्दुलिल्लाह इस तेल पर पढ़े गए। आप खुशकिस्मत हैं, ये सादत आपको दी है। हाँ, अब खिजरी तावीज है, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। ये मेरी हजरत को और उनके बड़ों को, फिर उनके बड़ों को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिला था। मुझे उनकी तरफ से इजाजत है, लेकिन ये सिर्फ 27 को लिखा जाता है। जितनी कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा एक मुअय्यना मिकदार, एक मुअय्यना वक्त, एक मुअय्यना साथ, एक मुअय्यना घड़ी में ये लिखा जाता है तावीज। और इसको हमने इस दफा खुशबू लगाई है, हर साल लगाते हैं, और टेप कर दिया है, टेपिंग कर दी है। इसको खोले नहीं, इसको चमड़े में, चांदी में बनवा के बाजू में बांध सकते हैं, गले में बांध लें। अक्सर ये तावीज गुम हो जाते हैं, इसकी बहुत शिकायत है। इसके ऊपर 40 बार सलामुन कौलन में रब्बिर रहीम हिफाजत की नीयत से पढ़ लेंगे। आज तक किसी का गुम तो नहीं हुआ। हाँ, अब इसलिए नहीं कि मैं दूंगा, ये तो कुरानदाजी है, वैसे पूछ रहा हूं, किसी का गुम तो नहीं हुआ। एक हाथ वो है, वो बहुत सारे हाथ हैं, गुम हो जाता है। बहरहाल पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जिन्नात कहते होंगे कि हम भी तस्बीह खाने में आए, हम भी तरावियां पढ़े, हम भी जिक्र में शामिल हो, हम भी हमें कुछ ना मिला तो फिर वो अपना दाल लगा जाते हैं। जैसे वो भेड़िए आए, या रसूलुल्लाह हमें भेड़े दे, हमें एहसास होता है कि हम बकरियां खाएं। तो हुजूर ने साहबा को बुलाया, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह हमारा दिल तो नहीं चाहता। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपनी हिफाजत करो, तुम अपना काम करो।
अपने हाथों से बकरियां दे, भेड़ दे भेड़ियों को, वो बेचारे कहां से गुजारा करें? वो भी तो बेबस से रुके थे जो रहे। तो ये तावीज क्या भी तीरंदाजी होगी। दुआ के बाद दो चीजें होंगी, अभी जिक्र होगा, फिर दुआ होगी, एक निकाह और एक तावीजात की कुरानंदाजी। जिक्र, एक चीज बताऊं, 27 की रात है, बैठ जाए, अभी दुआ हो रही, 27 की रात है, एक मेरा मशवरा है, जिक्र होगा पूरे दिल की गहराइयों से, दुआ होगी दिल की कैफियतों से। आप किसी कोना संभाल लें, उधर उधर कोना संभाल लें, और 27 की रात में बैठ के ना जितना हो सके सूरत कौसर पढ़ लें, इन चंद लम्हों में, बिल्कुल खामोश, ऐसे बैठ के कोई उधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर, बस यकसू होकर सूरत कौसर पढ़ लें। जिनका तावीज निकले हम खामोशी से तावीज ले लें, बाकी सूरत कौसर पढ़ने में लग जाए। यही सूरत कौसर पर कुरानंदाजियां भी करवाती है। और निकाह होगा तो इसलिए बिल्कुल अदब का मकाम है। अब बैठ के जिक्र करेंगे पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से, अल्लाह का नाम, अल्लाह के ध्यान से। 27 को जो तहरीरें आनी थी, 27 की रात को सिर्फ यही आई हैं। हमने 17 को उसकी कुरानंदाजी की थी। ये देखें, बिल्कुल थोड़ी सी तहरीरें आई हैं, 27 की रात को बिल्कुल नहीं आई। और 17 रमजान को तहरीरों की कुरानंदाजी भी हुई, उनके मर्दों को नाम बताए, मस्तूरात को भी नाम बताए हैं। इंशाअल्लाह ईद के 15 दिन, हफ्ता, 20 दिन के बाद उनको कॉलें की जाएंगी, फिर उनको टाइम दिया जाएगा। तो तहरीरें 17 को हमने कुरानंदाजी कर दी थी। अब अल्लाह का नाम अल्लाह के ध्यान के साथ, अल्लाह का नाम अल्लाह के ध्यान के साथ आज हम एक जिक्र करेंगे खास। सुने, ए अल्लाह, हर चीज को फना है, हर चीज खत्म हो जाएगी, और बाकी कौन है? कौन? अल्लाह को यही चीज पसंद है। सारी दुनिया खुशामद को पसंद करती है, अल्लाह को अपनी तारीफ और खुशामद बहुत पसंद है। हम आज का जिक्र करेंगे होवल बाकी, हु बाकी, होवल मौला, बस तू बाकी है, हम फनी हैं, फना हो जाएंगे। बस ये हमारी कुछ थोड़ी थोड़ी फरियादें हैं, हमारी थोड़े थोड़े दुख हैं, हमारे थोड़े थोड़े गम हैं। मुझे एक साहब कहने लगे, उनके वालिद थे तहसीलदार, कहने लगे कि बाबा जी आते थे दरवाजे के बाहर, कभी घी, कभी चटाई हाथ की बुनी हुई, गांव में बुनते हैं, कभी हाथ का बना हुआ झाड़ू, कभी मुर्गी, ये बाहर दरवाजे के बैठ जाते थे। और बैठने के बाद जब वालिद साहब निकलते थे, और तुम यहां कैसे बैठे? तोरे दर दा गुल रहा, तोरे घर दा कुत्ता, आपके दर का कुत्ते का बच्चा हूं और कुत्ता हूं, बैठा भौंक रहा हूं, बस ये तोहफा है, मेरे पास कुछ नहीं है। पिछली पहले तोहफों का, पहले भी आप मैंने इतने दफा घी दिया था, इतनी मुर्गी दी थी, आपकी मेहरबानी, आपने कबूल किया। फिर गिनवाता था पिछली सारी कहानी, वो मैंने दिया था, वो इस तरह दिया था, वो इस तरह दिया था, आपकी नहीं है, आपने कबूल किया था। ये मेरा छोटा सा कागज है, मेरी जमीन का यूं से यूं करना है, यूं से यूं करना है। मेरे अल्लाह को कहे, मेरा मौला तू है बाकी। पहले भी थोड़ी बहुत ही दरखास्तें दी थी, फलां मसले का हल, फलां का हल, फलां का हल, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा घी है, मुर्गी है, ये थोड़ी सी शफकत है, तेरी मेहरबानी है, तू बाकी है, मैं फना होने वाला है। ये तस्बीह करते हुए अल्लाह से बातें करनी है, अल्लाह को फरियादें सुनाना है, और रोने वाला कमाल की मुरादें पा लेता है। कोई एक रोने वाला मिल जाए, कोई एक तौबा वाला मिल जाए, कोई एक परदेसी मिल जाए, कोई एक बच्चा मिल जाए, कोई एक सफेद बालू वाला मिल जाए, कमाल हो जाए। अब ऐन कबूलियत की घड़ी, कबूलियत के लम्हे हैं, और वजीफा कौन सा पढ़ना है? होवल बाकी, होवल पढ़ना है। और फिर वजीफे के बाद दुआ करनी है, और दुआ के बाद निकाह का अमल है। पहले निकाह होंगे, फिर पहले तावीज का होगा कुरानंदाजी, फिर निकाह होंगे। तो आंखें झुका के, सर झुका के, आंखें झुका के, सर झुका के, दिल की गहराइयों से यह पढ़ना है। और एक दो थोड़े से ऐलानात हैं, वो तवज्जो से सुन ले। तस्बीह खाने के निजाम के लिए, मेरा और मेरी नस्लों, इस सारे निजाम के लिए, हामीम ला युनसा
ये 313 बार कभी ना पढ़ना छोड़े, या हाफिजो या सलाम। और तस्बीह खाने और हजवेरी महल को दाएं बाएं वुसअत देने के लिए सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 11 बार सुबह शाम लाजिम पढ़ें। और 40 बार सूरत तौबा पढ़ने वाले उनको भी इजाजत है, वो पढ़ रहे हैं। और कहा था कि हर नमाज के बाद एक बार सूरत तकासुर मेरा और मेरी नस्लों का तस्वर करके जरूर पढ़ें। रूहानी जानिसारों के अगले अमल का आगाज हो चुका है, उसकी अलविदाई दुआ 9-10 मुहर्रम को होगी। और जो लोग फितनों के जाल को तोड़ने के लिए अमाल कर रहे हैं और उन्हें टारगेट दिए हुए हैं, वो अपनी हिम्मतें बढ़ाएं और अपनी तवज्जो बढ़ाएं और अपना ध्यान बढ़ाएं और अपनी यकसुई बढ़ाएं और अपनी वफा और जानिसारी बढ़ाएं, वफा और जानिसारी बढ़ाएं। रमजान की 28वीं शब को सूरत वज़्ज़ुहा 9 काफ वाला अमल होता है। इसके बारे में मशहूर है, ये क्रेडिट कार्ड है, बस यूं डालो और पैसे 9 काफ हर सूरत पे, 9 काफ हर काफ पे। ये इंशाल्लाह 28वीं शब को होगा। आज 27वीं शब में 1100 मरतबा सूरत कौसर का अमल हर साल होता है। अभी पढ़े, पूरा ना हो सके कल भी पूरा कर सकते हैं। अभी पढ़े, पूरा ना हो कल भी पूरा कर सकते हैं। और दूसरा, रमजान की 29वीं शब में आयत करीमा का अमल होता है। और रमजान की 30वीं शब में लाइलतुल जायजा में या तव्वाब और या करीम का अमल होता है। 6:45 बजे ईद की नमाज होगी और ईद की नमाज मैं खुद मुसाफिरों रोजेदारों के साथ अदा करूंगा। ये मेरी खुशकिस्मती होगी, ये मेरी खुशकिस्मती होगी इंशाअल्लाह ताला। और 5वीं अबकरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तुर्की में 16 अप्रैल से शुरू होगी। पूरी दुनिया उसमें आएगी, आप भी आए। 11 जुमेरातों का अमल हर साल होता है। काली दुनिया, काले लोग, काले रोग और दुआए हजरत अली का ये चिल्ला 9 अप्रैल से शुरू होगा। एक मोटे कपड़े की काली थैली में, एक मोटे कपड़े की काली थैली में आपने माश, काले माश, हरमल, कलवंजी और काली मिर्चें 50-50 ग्राम खुद लानी है, उस पे अमल होगा। इसमें आजम का दम इंशाल्लाह 3 मई बरोज एतवार बाद नमाज फजर होगा और हल्का कश्फुल महजूब भी। या कहारों का 120 दिन का चिल्ला 30 अप्रैल से शुरू होगा। या कहारों का 120 दिन का चिल्ला 30 अप्रैल से शुरू होगा। 27 अगस्त में ये अपने मकाम पे पानी में पांव डिबो के ये अमल करना है। हर साल इसकी इजाजत होती है। या मुसब्बिबुल असबाब, जिन जिन लोगों के 21 दिन का अमल पूरा हो रहा, निसाब पूरा हो रहा, 21 दिन का निसाब, वो ईमेल के जरिए, खत के जरिए भेज के अगला अमल शुरू करें और उसके लिए टाफियां जरूर बांटनी है। अल्लाह पाक की रहमत हो, आप पे करम हो। आज जितने भी हमारे पैकेज हैं, इनका हदिया बहुत जरूरी है। हस्ब तौफीक आप मीठी चीज अपने मकाम पे बांट देंगे। खत्म कुरान में, तस्बीह खाने में मुख्तलिफ खत्म कुरान भी हुए, अल्लाह कबूल फरमाए। आए बैठ के पूरे दर्द के साथ, पूरे गम के साथ, दिल की गहराइयों के साथ और रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, उसको मनाते हुए पढ़ेंगे। होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी। होवल बाकी, होवल बाकी। डूब के पढ़े, रो के पढ़े, तवज्जो से पढ़े, गिड़गिड़ा के पढ़े। होवल बाकी, होवल बाकी, होवल बाकी। होवल बाकी, होवल बाकी।
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ پردیسی مولا دور پرے سے تسبیح خانے آئے تھے، پورا مہینہ آس لگا کے بیٹھے رہے، انہیں بعد میں پتہ چلا یہ تو خود خالی ہے، اس خالی کے پاس آئے تھے۔ میرا بھرم رکھ دے، میرا شرم رکھ دے، میری لاج رکھ دے، میرا اللہ مجھے خالی کے گھر آئے تھے، اب ان کو خالی نہ بھیج، اب ان کو خالی نہ بھیج، میری لاج رکھ دے، میرا بھرم رکھ دے میرا اللہ۔ ان کو بعد میں پتہ چلا یہ تو خود خالی منگتا فقیر بھکاری ہے۔ اے میرا سخی آقا، اے میرا اللہ، ان کی آسیں پوری کر دے، ان کی امیدیں پوری کر دے، ان کی آسیں امیدیں پوری کر دے، دل میں جو آسیں لائے ہیں پوری کر دے، دل میں جو امیدیں لائے ہیں پوری کر دے، مشکلیں حل کر دے، ناکامیاں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، علت ذلت اور قلت سے بچا، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، اپنی رحمت سے سایہ دے دے، اپنی رحمت کی چھاؤں دے دے، اپنی مغفرت کے راستے کھول دے، اپنی مغفرت کے دروازے کھول دے، ہماری مشکلیں دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے۔ عزت تیرے پاس ہے، رحمت تیرے پاس ہے، عطا تیرے پاس ہے، برکت تیرے پاس ہے، سکون تیرے پاس ہے۔ انسانیت کو دے دے، رحمت دے دے، برکت دے دے، اپنی عطا دے دے، بن مانگے دے دے، بن مانگے دے دے، دنیا بھی دے دے، رزق بھی دے دے، صحت بھی دے دے، عطا بھی دے دے، سکون بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، جھولیاں بھی بھر دے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا دے، روح کی دنیا دے، من کی دنیا دے، جذبوں کی دنیا دے، عطا کی دنیا دے، مغفرت دے دے، رحمت دے دے، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، دنیا آخرت بہتر فرما، علت ذلت قلت سے بچا، علت ذلت قلت سے بچا، کسی کو بھی خالی نہ بھیج، کسی کو بھی خالی نہ بھیج، سب کو آسیں امیدیں پوری کر دے، ناکامیاں ختم کر دے، مشکلیں حل کر دے، پریشانیاں دور کر دے، ہمارے ہر حال میں ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمیں خالی نہ چھوڑ، کسی کو خالی نہ بھیج، جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ختم کر دے، آسمان اور عرشوں سے رشتے بنا دے، آسمان اور عرشوں سے رشتے بنا دے، بس قبول فرما لے، روزے بھی قبول کر لے، تراویحاں بھی قبول کر لے، چاند رات تک اپنی رحمت بہت بڑھا دے، اور اے اللہ کہیں ہمیں نفس اور شیطان پھسلا نہ دے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید آج رمضان ختم ہو گیا، ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید آج رمضان ختم ہو گیا، اے اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا دے، استقامت دے دے، استقامت دے دے، اپنی رحمت دے دے، اور اپنا فضل دے دے، اور اپنا کرم دے دے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی قرآن اندازی ہوگی، آپ